Acha bache, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to start our course, that is Financial Accounting 2. The book which I am going to recommend you for this particular course is Fundamental Accounting Principle 18th edition by Lawson. Fine. So as we know that it is Financial Accounting 2, in your Financial Accounting 1 the initial chapters of this book will be discussed. So we are not studying Financial Accounting 1. We are going to start our discussion for Financial Accounting 2, and the starting chapter for this particular course will be chapter number 9. As we have discussed Financial Accounting 1 in previous chapters, we have the basic idea about the accounting rules, the debit credit rules, financial statements, and the whole idea regarding regarding the sole proprietorship is basically the discussion of the initial chapters. But chapter number 9 is all about the transformation from the sole proprietorship towards partnership and corporation. जब हम पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन की बात करेंगे, ऑलवेज़ रिमेंबर कि हमारा मेन पॉइंट या हमारी जो मेन कंसिड्रेशन है वो सेम वही एक्टिविटीज़ होगी, अकाउंटिंग एक्टिविटी होगी जो कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए इस्तेमाल करते हैं. वहाँ पे भी अकाउंटिंग रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, डेबिट क्रेडिट रूल्स, ऑल द थिंग्स विल बी सेम, बट पर्पस विल बी डिफरेंट. वहाँ हम सिर्फ एक बंदे के लिए बात कर रहे थे, लेकिन जब हम पार्टनरशिप और ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन की बात करने लगते हैं तब हमारा जो डिस्कशन होती है वो ब्रॉडर सेंस में चली जाती है. एक बंदे से हट के हम दो बंदों के ऊपर या कई लोगों के ऊपर, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करने लग जाते हैं. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि तमाम जगहों पर, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें सेम रहती हैं. जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स क्या हैं? Always remember, receivable is basically the amount that you own but still you are not receiving. वो amount, वो चीज़, वो asset that you are owning, you are considering yourself as the owner of that particular product, लेकिन आप अभी तक उसे डिमांड नहीं कर रहे, आप अभी तक उसे क्लेम नहीं कर रहे. तो वो चीज़ जो कि आप कंसीडर करें कि ये है तो मेरी, लेकिन अभी तक मैं ले नहीं पा रहा, लेकिन मैं लूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर दैट पर्सन एंड आई विल रिसीव इन द नियर फ्यूचर. दैट विल बी द receivable, and this chapter is all about the accounting for receivable. Before starting this chapter, I just want to recall certain things regarding debit and credit rules so that it will be easier for us to understand all the accounting entries that we are going to discuss in this chapter. Always remember that according to your accounting equation, assets will be equal to liabilities plus owners equity. एसेट्स की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हम उसे डेबिट एंड क्रेडिट रूल के हवाले से बात करें, नियर अबाउट ऑपोजिट एक्टिविटी होती है लाइबिलिटी की और ऑनर्स इक्विटी की. अब हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए एक चीज़ लिखते हैं कि एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉस जब ये बढ़ते हैं सो वी हैव द आइडिया कि सर ये डेबिट होते हैं, और जब ये कम होते हैं सो दे विल बी क्रेडिटेड. सेम इन द केस with liabilities, owners equity, revenue. Whenever these things will increase, they will be credited, and whenever they will decrease, they will be debited. Now just try to create a sense in your mind that sir, how we are going to differentiate between these things, or how we may recall that thing that will help us
to memorize it, that whenever your assets will increase, it will be in the debit side, whenever your assets will decrease, it will be in the credit side. क्या ऐसा प्रोसेस या ऐसा तरीका इख्तियार करें जिससे हमें ये हमेशा याद रहे कि डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है। हमेशा आपने कैश को एक चीज़ कंसीडर करना है। कैश के लिए हमेशा याद रखें कि जब आपके पास कैश आएगा वो डेबिट हो जाता है, और जब आपके पास कैश कम होगा तो वो क्रेडिट हो जाता है। बस इसको आप कंसीडर अगर कर लें तो बाकी आपकी हर चीज़ आपको समझ आने लग जाएगी। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है या किस तरह वो समझ आने लग जाएगी। लेट्स सपोज लाइबिलिटीज़ बढ़ गई। लाइबिलिटीज़ कैसे बढ़ गई? लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल ली कि आई एम गोइंग टू टेक $100 फ्रॉम अ पर्सन। अब मेरी लाइबिलिटी, मैंने उसे वापस करने हैं ये $100 इन द फ्यूचर। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये याद रखना है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि सर ये लाइबिलिटी तो चलो बढ़ गई, मैंने किसी से ₹100 बोरो किए हैं एंड इन द फ्यूचर आई विल हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट, लेकिन सर क्या ये डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा? आई एम कन्फ्यूज अबाउट दैट। मुझे नहीं याद रहता कि सर मैंने किसी से जब चीज़ बोरो की, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ने पे डेबिट पे आता है, क्रेडिट पे आता है, मुझे याद नहीं रहता। आप इसे छोड़ दें, आप 2 वे फिल इन दी ब्लैंक्स याद कर लें, डेबिट और क्रेडिट फिल इन दी ब्लैंक्स। अब ये प्रोसेस क्या होता है कि जब आपके पास ₹100 आए, ये क्या है? कैश। कैश आपके पास आ रहा है। कैश क्या है? एसेट। एसेट बढ़ रहा है, तो ये हमेशा याद रखें कि ये डेबिट साइड पे आता है, ये कैश आ गया। ठीक है। अब क्योंकि इस फिल इन दी ब्लैंक में एक चीज़ आपको जहन से खुद ही फिल हो गई है, तो दूसरी चीज़ क्या बची है? जहाँ बच गई है वो आप खुद, अब बाकी चीज़ आप फिल कर लें और यहाँ पे अकाउंट पेबल लिख लेते हैं, तो ये आपका रूल कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा ये बात बता देता हूँ कि एक चीज़ आपने इनमें से खुद फिल कर लेनी है और बाकी जो रह जाएगी वो दूसरी चीज़ होगी। अब ₹100 आए, वो मैंने वापस करने थे, डेट वाज माय लायबिलिटी। अब मुझे याद नहीं आ रहा था कि सर ये लायबिलिटी डेबिट साइड पे लिखनी है या क्रेडिट साइड पे लिखनी है। आई वाज नॉट श्योर अबाउट दैट। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि सर क्रेडिट का डेबिट रूल होता है या क्रेडिट रूल होता है। ये पता है कि सर मैंने जब बोरो किया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई है, तो मैं उस परेशानी से निकल, टेंशन में लग रहा ही नहीं कि डेबिट आनी है क्रेडिट आनी है। मुझे ये पता चला ₹100 आए हैं, ये $100 क्या हैं, ये $100 क्या है? ये कैश है। कैश इज़ एन एसेट। एसेट बढ़ने पे डेबिट जाता है, तो मैंने डेबिट वाली फिल इन दी ब्लैंक जो है ना वो फिल कर ली। तो बाकी कौन सी चीज़ रह गई? क्रेडिट वाली। कैश यहाँ पे आ गया, अकाउंट पेबल यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारी अगली डिस्कशन होती है, अगली डिस्कशन कर लेते हैं ऑनर्स इक्विटी में। ऑनर्स इक्विटी के अंदर मैं कहता हूँ कि जब हम लेट्स सपोज मैंने ना कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल, सरमाया लगाया, and I am not sure, I am confused that whether it will be in the debit side or the credit side। सर एंट्री पास करते वक्त मुझे ये चीज़ भूल जाती है कि इसे कैपिटल को डेबिट साइड पे लिखना है या क्रेडिट साइड पे लिखना है। अगेन आप वही वाली बात करें जो ऊपर आपको समझाया कि कैपिटल लगाया, सरमाया लगाया, किस फॉर्म में लगाया? लेट्स सपोज $100 कैश की फॉर्म में लगाया, तो कंपनी के अंदर $100 क्या आए हैं? आ रहे हैं। ये क्या $100 कहाँ पर चला जाएगा? डेबिट साइड पर। $100 डेबिट, कैश आ गया। बाकी कौन सी जगह फिल इन दी ब्लैंक अवेलेबल है? ये वाली, क्रेडिट। यहाँ पे लिख के यहाँ पे कैपिटल लिखना। अब यहाँ पे बच्चे परेशान, सिर्फ जो कैपिटल, लाइबिलिटी, सिर्फ आपने एसेट का याद रख लेना है कि डेबिट बढ़ने पे डेबिट और कम होने पे क्रेडिट, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी मैनेज इन अकॉर्डेंस टू डेट। ठीक है, आपकी बाकी चीज़ें उसी मुताबिक चलती रहेंगी। ठीक है, ये मैंने ऑनर्स इक्विटी की एग्जांपल ले ली। रेवेन्यू हो गया, सर मेरे पास ना प्रॉफिट आया, मैंने कोई चीज़ सेल की है, मेरे पास प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट, या आप उसे रेवेन्यू का नाम देने, बट सर आई एम नॉट श्योर दैट वेदर इट विल गो टूवर्ड्स द डेबिट साइड और द क्रेडिट साइड। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, मुझे याद नहीं रहता। तो रेवेन्यू जो आ गया, ठीक है, अब रेवेन्यू आ गया, किस फॉर्म में आया? लेट्स सपोज वो $100 कैश की फॉर्म में आया। जब आप $100 कैश की फॉर्म में कह रहे हैं, तो आपका कैश क्या हुआ? $100 से डेबिट हो गया, वो रेवेन्यू की फॉर्म में आया। दूसरी फिल इन दी ब्लैंक्स कौन सी अवेलेबल है?
क्रेडिट साइड की, $100 क्रेडिट, यहाँ पे आप लिख लेते हैं रेवेन्यू। ठीक हो गया। अब आते हैं एक्सपेंस का और लॉस का, इन दोनों का ताल्लुक एसेट की फॉर्म में, या इस यही सेम लॉजिक यहाँ पे कैसे अप्लाई होती है। मैंने बिजली का बिल भरा, दैट वाज माय यूटिलिटी एक्सपेंस। I have paid a utility bill, utility expense, and I am not sure that whether it will go towards the debit side or credit side। सर मुझे याद नहीं रहता कि ये जो एक्सपेंस है इसे डेबिट साइड पे लिखना है या क्रेडिट साइड पे लिखना है, कोई मसला नहीं है। आप ये बताएं आपने एक्सपेंस किस फॉर्म में किया था। मैंने $100 दिए थे, मैंने $100 पे किए हैं। पे मीन्स यू हैव गिवन डैट अमाउंट। ठीक है, जब आप $100 दे रहे हैं आपका कैश इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, डेफिनेटली इट विल डिक्रीज़। जब आपका कैश डिक्रीज़ होगा, कैश इज़ एन एसेट, एसेट विल डिक्रीज़, और डिक्रीज़ होने पे वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो मैं वो डबल रूल या डबल फिल इन द ब्लैंक्स का प्रोसेस लिखता हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट। तो $100 विल बी रिटन इन द क्रेडिट साइड बाय द नेम एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, नहीं सॉरी, बाय द नेम कैश, कि कैश मेरा चला गया। ठीक है, मैंने ना $100 पे कर दिए, $100 इज एन एसेट दैट विल डिक्रीज़, और ये $100 क्रेडिट साइड पे आ गया। ठीक है, अब बढ़ेगी क्या चीज़, कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिस पे आपको श्योर होगी कि सर ये $100 कम होने पे क्रेडिट पे आ गए हैं। तो बाकी मुझे अब एक्सपेंस की समझ नहीं आ रही थी, मैं ये यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सर दूसरी फिल इन दी ब्लैंक जो अवेलेबल है वो, या स्लॉट अवेलेबल है वो डेबिट साइड पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे यूटिलिटी एक्सपेंस के नाम से इस स्लॉट को फिलअप कर लेता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंस हो गया। अब इसके बाद हमारी अगली लास्ट बात क्या है, लॉस की फॉर्म में। सर मेरा लॉस हो गया कंपनी के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि द लॉस विल बी रिटन इन द डेबिट साइड और द क्रेडिट साइड। आई एम नॉट श्योर कि वेदर इट विल वेयर इट शुड बी रिटन। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इसे डेबिट साइड पे लिखूं या क्रेडिट साइड पे लिखूं। डोंट वरी, नथिंग टू बी वरी अबाउट। लॉस हुआ क्यों, क्या हुआ सर, मेरा $100 कम हो गया, मेरे $100 का नुकसान हो गया। 100 होने से कैश आपका बढ़ेगा कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। कैश इज़ एन एसेट, एसेट डिक्रीज़ होने पे कहाँ पे जाता है, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना डेबिट क्रेडिट लिख के एक स्लॉट मैंने फुल अपनी तरफ से कंप्लीट किया $100 का। यहाँ पे क्या लिख लिया, कैश, कि सर $100 कैश मेरा नुकसान हुआ है। जब एक स्लॉट फिल हो गया, बाकी कौन सा स्लॉट अवेलेबल है, डेबिट साइड का। यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपना लॉस लिख लेता हूँ। यानी मुझे ना लॉस के लिए याद रखना पड़ा, ना मुझे एक्सपेंस के लिए याद रखना पड़ा कि उसे डेबिट पे लिखना है क्रेडिट पे, ना मुझे क्या नाम है रेवेन्यू के लिए याद रखना पड़ा कि उसे डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में, ना मुझे कैपिटल के लिए याद रखना पड़ा कि डेबिट के लिए लिखना है क्रेडिट के लिए, ना मुझे क्या नाम है लायबिलिटी के लिए याद रखना पड़ा कि डेबिट पे लिखना है क्रेडिट पे लिखना है। ये तमाम की तमाम चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश का आपने ध्यान में रखना है। कैश इज़ एन एसेट, और एसेट जब आपके पास आ रहा हो वो डेबिट होता है, बढ़ रहा होता है, और जब आपके पास से जा रहा हो वो क्रेडिट होता है। इसे हम यहाँ पे यूँ लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली योर एक्टिविटी, और अब इसी एक्टिविटी को हम इस चैप्टर पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल। रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, मैंने आपको पहले कहा है कि दिस इज़ द अमाउंट दैट यू आर ओनिंग, fine, this is the amount that you have owned and you are not going to forget this amount। आपने कहा I will take it back in the near future, मैंने फ्यूचर में अमाउंट वापस लेनी है। अब हमारी पहली तो रीज़न है, बात है कि सर हम why we are ready to give your amount to someone, हम कब क्यों कहते हैं कि हम उससे बाद में ले लेंगे। तो पहली सबसे बड़ी रीज़न हमारी अकाउंट रिसीवेबल में, मेजर एक्टिविटी अकाउंट रिसीवेबल की जो क्रिएट करती है वो हमारी सेल की एक्टिविटी होती है। ठीक हो गया, सेल जब भी आप करते हैं वहाँ से आपकी अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होते हैं मोस्टली। ठीक है, मोस्टली का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि सर वाई वी आर सेलिंग ऑन क्रेडिट, हम यहाँ पे क्रेडिट पे, उधार पे क्यों सेल कर रहे हैं। उधार का मतलब है कि सर चीज़ अब ले लें आप हमसे, पैसे आप बाद में दीजिएगा, वो पैसे हम बाद में उसे अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट करेंगे। वाई वी आर नॉट सेलिंग आर प्रोडक्ट ऑन कैश। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड।
तो बेटा पहली बात यह है कि जब आप कहें कि नहीं मैं सिर्फ पैसों का दूंगा आपको चीज़, तब आपकी सेल डिक्रीज़ हो जाती है. Sales of the company will decline whenever you will argue that I am not going to sell my product on any other term except cash. मैं किसी और शर्त में नहीं दूंगा सिवाय कैश के. तो लोग आपके पास से चीज़ परचेज़ करने काम आते हैं, कहते हैं नहीं अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर हम नहीं ख़रीद सकते. ठीक है. लेकिन जब आप उन्हें ऑफ़र देते हैं कि नो सर यू कैन पे इन द फ्यूचर, आप फ्यूचर में मुझे पे कर दीजिएगा, मेरी चीज़ ले जाएं, तो आपकी सेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज़ होने लग जाती हैं. और कंपनी क्या करती हैं कि सेल को बढ़ाने के लिए अपनी अकाउंट रिसीवेबल की एक्टिविटी को फ्लरिश करते हैं. वो कहते हैं सर आप बाद में पैसे दे दीजिएगा, अभी दिस इज़ योर प्रोडक्ट, वी आर रेडी टू सेल इट टू यू, आप ये लें और ठीक है आप करें. जब हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल की बात, तो अब यहाँ पे जो पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर डिस्कस हुआ है वो है कॉन्सेप्ट है क्रेडिट कार्ड का. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम कोशिश करते हैं कि कंपनीज़ जो होती हैं ना वो मुख्तलिफ बैंक्स के साथ एग्रीमेंट कर लेती हैं कि सर वी आर रेडी टू ऑफ़र आर कस्टमर और रिकमेंड आर कस्टमर योर क्रेडिट कार्ड, व्हाट विल बी द टर्म एंड कंडीशंस. यानी हम एक बैंक से बात करते हैं कि सर हम आपके क्रेडिट कार्ड को अपने कस्टमर्स को कहेंगे कि वो अपनी पेमेंट हमें आपके क्रेडिट कार्ड से करें, क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं. ठीक है. अब इस चैप्टर में दो क्रेडिट कार्ड्स का जिक्र है, एक क्रेडिट कार्ड 1 है, एक क्रेडिट कार्ड 2 है. अब उसकी दोनों में टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं, ये मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इसे ज़रा समझें. क्रेडिट कार्ड 1 कंपनी कहती है कि सर एक्चुअली हम आपको पेमेंट करते हैं, आप हमें ना जैसे ही हम कस्टमर क्रेडिट कार्ड हमारा यूज़ करेगा, क्रेडिट कार्ड 1 का बता रहा हूँ, जब भी कस्टमर हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा हम आपको कैश उसी वक्त आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. यानी बाय हैंड आप कैश नहीं लेंगे, आपके अकाउंट में कैश आ जाएगा. ठीक है. लेकिन हम आपसे जो फ़ीस चार्ज करेंगे लेट्स सपोज वो 4% होगा. इसका मतलब क्या है कि जब कोई कस्टमर $100 की चीज़ परचेज़ करेगा, उस $100 में से $96 कंपनी को मिलेंगे कैश की फॉर्म में, उनके अकाउंट में आ जाएंगे, और $4 क्या होगा, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस होगा, जो कि कौन बियर करेगा, कंपनी बियर करेगी कि चलो क्योंकि हमारी सेल्स बढ़ती हैं क्रेडिट कार्ड की वजह से, तो क्रेडिट कार्ड वालों को $4 का हम क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस पे करने को तैयार हैं. ठीक हो गया. अब इसके बाद हम आते हैं अपना क्या नाम है दूसरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर, डेट इज़ योर क्रेडिट कार्ड 2. क्रेडिट कार्ड 2 की टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं, वो कहते हैं कि सर वी विल पे यू कैश इन योर अकाउंट आफ्टर 1 वीक. यानी आप कस्टमर आएगा हमारा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेगा, लेकिन पेमेंट हम आपको इमीडिएटली नहीं देंगे, हम पेमेंट देंगे हर एक हफ़्ते बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए करेगी अमाउंट, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा. और इस पे हम आपसे जो चार्ज करेंगे वो ओनली 2% चार्ज करेंगे. ठीक है. अब इस वाले क्रेडिट कार्ड 1 में और क्रेडिट कार्ड 2 में क्या फ़र्क है, ये अब आपने समझना है. जब हम क्रेडिट कार्ड 2 की बात करते हैं तब हमारे पास अकाउंट $100 तो आ जाते हैं, $100 की हम सेल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं वो कब आते हैं, आफ्टर 1 वीक. एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, आफ्टर 1 वीक. और यहाँ पे टोटल हमारा कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है अकाउंट रिसीवेबल का. यानी आपको पता है कि बैंक से एक हफ्ते बाद हमने अकाउंट रिसीव करने हैं $100 के, और कितने अमाउंट रिसीव करने हैं, $98. और $2 क्या है, वो हमारा क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस है. एंड वी हैव द आइडिया कि क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस जो है ना वो हमें बैंक को पे करना पड़ेगा अमाउंट, क्योंकि हम बैंक की फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, हम बैंक से सर्विसेज ले रहे हैं. बैंक इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि ये आपको उसी वक्त कैश आपके अकाउंट में
क्रिएट कर देता है, जबकि ये वाला क्रेडिट कार्ड क्या करता है, आपको 1 वीक का टाइम डिमांड करता है एंड लेटर ऑन दे विल डिपॉजिट दैट अमाउंट इन योर अकाउंट। तो अब इनमें एंट्रीज़ का भी फ़र्क है, ठीक है। वो एंट्रीज़ का फ़र्क क्या है वो अभी मैं जैसे ही आपको चैप्टर शुरू करूँगा आपसे वो सारी डिस्कशन करता हूँ। हमने यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, रिकग्नाइजिंग अकाउंट रिसीवेबल। योर अकाउंट रिसीवेबल विल बी रिकग्नाइज व्हेन एवर यू विल सेल ऑन credit. This is the simplest thing that you can understand. Later on we have the concept that is sales on credit. Sales on credit की डिस्कशन हमने वैसे ही कर ली है कि sales on credit का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम आपको क्या कहते हैं चीज़ सेल करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू पे यू द कैश, हम आपको कैश नहीं देंगे। वैन वी विल पे यू कैश, वी विल पे यू कैश इन द फ्यूचर, हम आपको कैश फ्यूचर में देंगे। जब फ्यूचर में कैश देंगे तो हम आपकी बार यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, अकाउंट रिसीवेबल का, क्योंकि आपने अमाउंट अभी रिसीव नहीं की, यू विल रिसीव इन द फ्यूचर, आपको आप फ्यूचर में रिसीव करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने कहा है कि दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। उन्होंने कहा है यहाँ से अगर हम पढ़ना शुरू करें, द फर्स्ट इज़ अ क्रेडिट कार्ड सेल ऑफ 950 टू कॉमस्टोर। अ क्रेडिट सेल इज़ पोस्टेड विद बोथ डेबिट टू द अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट इन द जनरल लेजर एंड डेबिट टू द कस्टमर अकाउंट इन द अकाउंट रिसीवेबल लेजर। अब यहाँ पे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको सिंपल सी एक बात बता देता हूँ। अकाउंट रिसीवेबल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज एन एसेट, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो आप ओन कर रहे हैं लेकिन अभी शायद आपको मिली नहीं है, लेकिन मिल जाएगी। लेकिन एसेट क्रिएट हो चुका है, एसेट बढ़ने पे कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड पे। तो पहली चीज़ हमने क्या की, लेट्स सपोज हमने एक प्रोडक्ट सेल की $950 की, $950 की प्रोडक्ट सेल की, पैसे मिल गए हैं? नो, यू हैव नॉट रिसीव्ड दैट प्रोडक्ट, यू आर गोइंग टू सेल, यू हैव सोल्ड योर प्रोडक्ट ऑन कैश। तो अकाउंट रिसीवेबल आपके पास कितना आ गया, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल आपके पास क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा, अब आपने सिंपल सी बात करनी है कि सर आई डोंट हैव द आइडिया कि मुझे यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखनी है, क्रेडिट साइड पे लिखनी है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी सेल हुई है तो मेरा अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया। जब आपका अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया तो वो डेबिट साइड पे आएगा विद $950। द सेकेंड स्लॉट इज़ अवेलेबल एट द अदर साइड, दैट इज़ योर क्रेडिट साइड, $950। और इससे क्या चीज़ बढ़ी है, सेल्स। सेल्स आपका रेवेन्यू होता है, बढ़ने पे क्रेडिट साइड पे जाता है, याद रहे, ठीक, नहीं तो अकाउंट रिसीवेबल वाली जो बात मैंने आपको समझाई है उसी से भी आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे, एक ये एग्जांपल आपके पास होगी सॉल्व। इसके बाद हम क्रेडिट कार्ड सेल के ऊपर आते हैं, जिसमें हमारी जो मैंने दोनों क्रेडिट कार्ड हैं उसकी एक्टिविटी आपको समझाता हूँ। क्रेडिट कार्ड सेल का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हमने पहले ही बात कर लिया है कि हम अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करते हैं कि सर इस बैंक के साथ भी हमारा एग्रीमेंट है, आप यूबीएल का कैश इस्तेमाल कर सकते, वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप क्रेडिट कार्ड सेल में हम पहली जो एग्जांपल बात कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन की कि जब आपको कंपनी क्या कह दे कि हम आपको ऑन द स्पॉट कैश डिलीवर कर देंगे। मीन्स इफ़ द कस्टमर विल यूज़ योर आर क्रेडिट कार्ड, कस्टमर से पेमेंट आते ही हम आपके अकाउंट में पैसे क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। इन दैट केस यू कैन नॉट कंसीडर दिस एक्टिविटी एज एन एक्टिविटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। जब आपको ऑन द स्पॉट कैश मिल रहा है तो दैट अमाउंट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन अकाउंट रिसीवेबल। जो बैंक है वो आपको उसी वक्त पैसे दे रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसमें अब आप देखें कि यहाँ पे है पेज नंबर 357 के ऊपर, टू इलस्ट्रेट इफ़ टेककॉम हैज़ $100 ऑफ क्रेडिट कार्ड सेल विद 4% फ़ी। वो कहते हैं $100 की टेककॉम ने क्रेडिट कार्ड सेल की है जिसकी 4% फ़ी है, एंड इट्स $96 कैश इज़ रिसीव्ड इमीडिएटली ऑन डिपॉजिट, द एंट्री इज़। कहते हैं कि कैश आपको इमीडिएटली रिसीव हो गया। जब कैश हमें इमीडिएटली रिसीव हुआ, कैश इज़ एन एसेट, एसेट इज़ इंक्रीजिंग, इट विल बी इन द डेबिट साइड विद द अमाउंट ऑफ $96। ठीक है, सेल कितने की हुई है, $100 की, लेकिन कैश कितना मिला है, $96। क्यों? क्योंकि $100 का 4% हमने क्रेडिट कार्ड फीस पे किया, जो कि $4 यहाँ पे एक्सपेंस आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख देते हैं क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस, जो कि कितना आएगा, $4। और सेल्स हमारी बढ़ गई, सेल्स इज़ अ रेवेन्यू, व्हेनेवर योर रेवेन्यू विल इंक्रीज इट विल बी इन द क्रेडिट साइड विद $100।
तो ये आपकी एक्टिविटी हुई है इन दैट सिचुएशन इफ़ द कंपनी और द बैंक इज सेइंग दैट सर वी विल इमीडिएटली डिपॉजिट योर अमाउंट, आपको आपके पैसे इमीडिएटली मिल जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक और एक्टिविटी है जिसके अंदर however if instead KCOM must remit electronically the credit card sale received to the credit card company and wait for the $96 cash payment, the entry on the date of sale will be like this one। वो कहते हैं कि अगर हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि जिसमें आप इंतज़ार करें कुछ अरसे के बाद आपको पेमेंट मिले, तो अब यहाँ पे हमारी सेम एक्टिविटी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैश नहीं आ रहा, बिकॉज यू आर वेटिंग, वट यू आर वेटिंग द पेमेंट टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। आप में पेमेंट आपको कब मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर हमारी पेमेंट हमें फ्यूचर में मिलेगी, तो ये क्या है, क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल की एक्टिविटी है। इस अकाउंट रिसीवेबल की एक्टिविटी में अब आप ये देखें कि कैश आपका क्या हो जाएगा, $96 से डेबिट हो जाएगा। द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि कैश तो आपको मिल ही नहीं रहा, आप वेट कर रहे हैं फ्यूचर का कि फ्यूचर में हमें अकाउंट रिसीवेबल मिलेंगे। तो इस वक्त हमें क्या मिल रहा है, इस वक्त हमें $96 का अकाउंट रिसीवेबल मिल रहा है। तो ये हमारी चीज़ क्या हो गई, डेबिट। ठीक है, क्रेडिट कार्ड कंपनी की पेमेंट क्या है, $4, जो कि उनकी क्रेडिट कार्ड फीस मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस $4 का, और सेल्स आपकी क्या आ जाएगी, द सेम एक्टिविटी ऑफ सेल्स विल बी $100। ठीक हो गया। इसके बाद कहते हैं जब आपको वाकई कंपनी से पैसे मिल जाएंगे, द कंपनी हैज़ डिपॉजिटेड द अमाउंट, यानी ये अकाउंट रिसीवेबल तो तब था ना व्हेन यू आर वेटिंग, आफ्टर दैट वेटिंग पीरियड मीन्स इन द फ्यूचर और आफ्टर 1 वीक और वट एवर द थिंग यू वॉन्ट टू से टू इट, जो भी आप कहना चाहें, एक हफ्ते बाद जब आप पेमेंट वाकई मिल जाती है, तब आप उस सूरत हाल में क्या एंट्री पास करना चाहेंगे। तो पहली बात यह है कि आपको एक हफ्ते बाद कैश मिल जाएगा $96 का। तो कैश इज़ एन एसेट, एसेट इज़ इंक्रीजिंग, व्हेन एवर यू एसेट विल इंक्रीज इट विल बी इन द डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद $96 के साथ आपका अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल आपका दूसरा एसेट था जो कि हमने एक हफ्ते पहले क्रिएट किया था। आज जब आपको वो $96 कैश मिल गए हैं, आपके अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ हो गया और कैश क्या हो गया, बढ़ गया। ये वाला एसेट आपका डिक्रीज़ हुआ, एसेट इज़ डिक्रीजिंग, इट विल बी इन द क्रेडिट साइड, और कैश इज़ अनदर एसेट, एसेट इज़ इंक्रीजिंग, इट विल बी इन द डेबिट साइड। So this is how you will perform this activity. Fine. Now after that we have the activity of valuing account receivable, and the first one is your bad debt activity. अब bad debt activity क्या होती है, पहले तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। As long as bad debt activity is concerned, bad debt means a debt that was not suitable for you. Bad debt means आपने किसी से कहा कि सर ओके फाइन, वी आर रेडी टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद यू एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द कैश टू कम इन फ्यूचर, so that is basically the account receivable activity, but in the future that person didn't pay you the amount, आपको फ्यूचर में पेमेंट नहीं करता, वो कैश आपको नहीं आया, तो ऐसी सूरत में डेट विल बी योर बैड डेट। हमने किसी पे भरोसा किया, हमने उसे पेमेंट की, हमने कहा कि सर आप हमें फ्यूचर में पेमेंट कर दीजिएगा, उस बंदे ने हमें फ्यूचर में पेमेंट नहीं की। इस सूरत में हम क्या करेंगे, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी इज़ ऑल अबाउट दैट। ठीक है, अब यहाँ पे है, पहले तो आपने एक जहन में याद रखनी है, द कंपनी इज़ नॉट रेडी टू फेस द लॉस ऑन द स्पॉट, यानी ये एक्टिविटी ऐसी है जो कि यूजुअल एक्टिविटी है, ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो कि शायद ही कभी हुई हो, नहीं, ये हर वक्त होती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ होती हैं, बैंक्स होते हैं जो ये बैड डेट की एक्टिविटी को फेस करते हैं, और फिर उसके लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वो पहले से ही कंसीडर करते हैं एक्टिविटी के, सर हम इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हम इस सूरत हाल में चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ठीक है, बैड डेट ऐसी एक्टिविटी है जो कि हर वक्त कंपनीज या बैंक्स फेस करते हैं, और उसे टैकल करने के लिए क्या करते हैं, अलाउंस का कॉन्सेप्ट है, अलाउंसेस फॉर बैड डेट। अब ये अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स क्या होते हैं, अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स ये एक्टिविटी होते हैं कि सर मुझे लग रहा है कि मेरा हो सकता है इस साल $100 का लॉस हो जाए,
इन द फॉर्म ऑफ बैड डेट, मुझे $100 शायद ना मिले। अब अगर मुझे पता है मेरे पास $100 का नुकसान है, तो मैं अगर लेट्स सपोज पिछले साल का प्रॉफिट हुआ था मेरा 1000 का, उस $1000 के प्रॉफिट में से मैं अपना $100 इस नेक्स्ट ईयर के बैड डेट के लिए अलाउंस क्रिएट कर लेता हूँ। अलाउंस मीन्स अ सॉर्ट ऑफ रिज़र्व, आप रिज़र्व क्रिएट कर लेते हैं। यू हैव द आइडिया कि सर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इन द फ्यूचर इन द नेक्स्ट ईयर आई विल नॉट बी एबल टू गेट माई अमाउंट बैक। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं शायद वो अमाउंट ना क्लियर कर सकूं, तो रिज़र्व या अलाउंस जो है ना वो आप क्रिएट करना चाहते हैं। अब इस अलाउंस और रिज़र्व की एक्टिविटी क्या है वो आप ज़रा समझ लें। समझ यही है कि हमें जब डर लग रहा है कि हमारा $100 वापस नहीं आएगा, तो अगर आप उस चीज़ को टैकल करना चाह रहे हैं तो आप पहले से ही $100 रिज़र्व के फॉर्म में या अलाउंस की फॉर्म में रख लें। वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप पैसे अपने पास संभाल के रख लेंगे कि अगर ये वाकई हो गया तो मैं इस $100 से इस नुकसान को भी फेस कर लूँगा या इसे राइट ऑफ कर दूँगा। तो उससे आप क्या कहते हैं, अलाउंसेस फॉर बैड डेट। राइट ऑफ की एक्टिविटी क्या है? राइट ऑफ की एक्टिविटी है कि आफ्टर सो मैनी रिमाइंडर्स एंड रिक्वेस्ट्स द पर्सन डिडेंट पे यू यूर रिक्वायर्ड अमाउंट। आपने किसी से कहा कि सर हम आपको पेमेंट दे देते हैं, आप ऐसा करें कि अकाउंट आप फ्यूचर में आप हमसे सेल चीज़ ले जाएं, सेल्स हम आपको कर लेते हैं, आप फ्यूचर में अकाउंट रिसीवेबल ये हमारा बन गया, आप हमें $100 फ्यूचर में दे दीजिएगा। वो बंदा आपके पास एक बार कहने पे, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर 4 दिन गुजर गए, फिर 10 दिन की वादा था, फिर 15 दिन, फिर ठीक है आफ्टर स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ रिमाइंडर्स। अब रिमाइंडर्स कितने होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपकी पेमेंट ड्यू है, आपने पेमेंट करनी है। अगर वो फिर भी आपको पेमेंट आपको नहीं दे पाता, इन दैट सिचुएशन आप उसे क्या कर देते हैं, आप उसे राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ मीन्स उसे ख़त्म करना है, और ख़त्म करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अपना अलाउंस। अपने अलाउंसेस से आपने उन पैसों को राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी की हुई है। टेककॉम हमारी कंपनी है, डिटर्मिन्स ऑन जनवरी 23 दैट इट कैन नॉट कलेक्ट $520 ओन टू इट बाय इट्स कस्टमर जे कैंट। जे कैंट कोई एक बंदा है जिसे इन्हें लग रहा है कि ये पैसे हमें रिकवर नहीं हो सकेंगे। ठीक है, यानी ये इस बंदे ने हमारे कितने देने थे, $520। आज हमें लग रहा है कि हम इस बंदे से पैसे नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा है कि वो राइट ऑफ करना चाह रहे हैं। अब पहली बात है कि यहाँ पे जो बात नहीं की हुई कि असल में हुई क्या, बात क्या हुई होगी। जे कैंट ने इनसे कोई ना कोई चीज़ परचेज़ की होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं टेककॉम ने कोई ना कोई चीज़ सेल की होगी। ठीक है, जब इन्होंने सेल की होगी उस एक्टिविटी क्या बनी होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट विद $520 एंड सेल्स क्रेडिट विद $520। ठीक है, ये एक्टिविटी हुई होगी। इसके बाद फिर